Hey बच्चों, good morning, Assalamu alaikum. Once again, Mr. Isaac Javed is with you. So hopefully you're fine and fit, and it's my wish you have a wonderful time. So now, मेरे बच्चों, we are today about the end of the chapter. God be praised. So little bit today I will give you touch whatever I taught you yesterday, and then I'm going to finalize this chapter today, and then at the end I will give you the message what the writer want to give a message to the reader. So मेरे बच्चों, yesterday I taught you whenever the main and important thing was that there was a going, okay, now the display of the dowry, Jahez ki dowry display. So many people thought here are a lot of other things, particularly related to jewelry that was brought by someone's women. She is now died in young age. So other lot of things. There was a woman. She was a very loud mouthed. Loud mouth means movement. She put a blame on Maulvi Saab. But in other people also whispering and saying to one another, might be Maulvi Saab has a magic, and due to that magic he is getting the assist help by angels. So different people have different views, but Maulvi Saab was very straight here, very straightforward in the way he done here what the people are telling. So all the things go settled very nicely, safe and sound. Now Mehran is going to Shmeem's home. So all the celebration is going to wind up. And today we are watching. Now I'm going to talk about the lecture of today. आज के lecture में ये मेरे बच्चों हम देखेंगे कि किस तरह दो ताकतवर आदमी उसकी पालकी को उठाते हैं. पैलकोइन होता है बच्चों पालकी. That place sit for the bride, a secret sitting chair. खैर पालकी को उठाते हैं और किस तरह लेके जाते हैं और शमीम अहमद के घर तक वो पहुंचाते हैं. फिर आज के लेक्चर में हम देखेंगे जैसे मेहरन जुदा हो जाती है, उसकी दो दूसरी बेटियां जब्दन और शमशन. जब्दन मेहरन के बाद वाली है, शमशन उससे छोटी है. वो रो रो के उन्होंने अपना बुरा हाल किया हुआ है. जो ही घर वापस आते हैं मौलवी साहब तो उसकी बीवी उसका हाथ पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि देखो मेहरन के बगैर ये घर कब्रिस्तान बन गया है. मौलवी साहब कहते हैं तुझे मेहरन की फिक्र है, जब्दन और शमशन को देख वो तो है ना. इसी दौरान दूसरे कमरे से मेरे बच्चों रोने की आवाज आती है और एकदम दरवाजे के पीछे से जब्दन आती है. उसने रो रो के अपना जो हेड क्लॉथ है, सर वाला दुपट्टा, उससे आंसुओं के बड़े बड़े निशान नजर आते हैं और बुरा हाल किया हुआ है. मौलवी साहब की आंखें भी सूजी हुई हैं गम से, लेकिन एक तरफ मौलवी साहब अपने आप को कंफर्ट फील कर रहे हैं कि बड़ी अहम जिम्मेदारी से वो सरखरू हुए. उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को समझ लग रही होगी. आफ्टर ऑल यू आर अ स्टूडेंट. आई एम प्राउड ऑफ ऑल यू. आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. यू आर वंडरफुल स्टूडेंट. नो डाउट बच्चों, you can't imagine I'm giving you a lecture with full of dedication, but problem here coming, the echoes mean the voice is remounting, so that's why sometimes you have a problem, but you will listen carefully again and again, then you will see you may be able to get it because you are a good student. हे मेरे बच्चों, एंड पे चैप्टर के हम देखेंगे कि मौलवी साहब जो है उसके बाद गांव की बच्चियों को जो ज़ेबुल साहब की बीवी है वो पढ़ाती है. स्कूल में प्राइमरी स्कूल खुल जाता है और प्राइमरी स्कूल खुलने के बाद मौलवी साहब के दो ही
अर्निंग के सोर्स होते हैं, एक रब की ज़ात और दूसरे चौधरी साहब। और चैप्टर के दिखाया गया है कि रब की ज़ात कितनी बड़ी है, जो मौलवी साहब जैसे हम जैसे गुनहगारों का भी ख्याल रखती है और वो सबका ख्याल रखती है। बच्चों, रब की ज़ात कितनी बड़ी है, वो हर अच्छे बुरे पर बारिश बरसाती है, वो सबकी सुनती है, सबकी दुआओं का जवाब देती है, उसकी नज़र में सब बराबर है। वो हर वक्त इससे भी बड़ी बात हमारी तौबा कबूल करने के लिए तैयार है। So the same message writer is giving in this chapter. Being a human, we need to convict, trust, believe, faith on Rabb Allah God. Whenever we have a faith, don't care about the world. What's going on right? What's going on left? Just only keep yourself straight. Whenever you are keeping yourself straight, there must be the shower of blessing coming a lot, unmeasurables, more than measuring, more than freedom, more than your thinking. So the same thing the writer is giving the message in this lecture, in this essay. So my bachcho, now I'm going to read, then here little bit I'm going to explain about the key point. The first one, जो उसकी बेटी महरम है, उसकी रुखसती के बाद का मंजर। मौलवी साहब की तबीयत खराब है, मौलवी साहब अच्छा फील नहीं कर रहे, माँ ने रो रो के बुरा हाल किया हुआ है, माँ घर को कब्रिस्तान कहती है बेटी के बगैर, लेकिन मौलवी साहब कहते हैं दूसरी दो बेटियों का तो फिक्र पहले करो। उसके बाद हम देखते हैं स्टोरी में ये बताया गया है कि हालात जो खुदा पर ईमान रखते हैं उनके हालात डावाडोल होकर भी ठीक हो जाते हैं, उनकी कश्ती डगमगा कर भी ठीक हो जाती है। लिहाजा आखिर पे रीडर को मैसेज यही दिया है, हालात कुछ भी हैं, मौलवी साहब से भी चाहे बुरे हैं, ईमान रखने की ज़रूरत है और अपने अमल को ठीक करने की ज़रूरत है। जब आपका अमल और ईमान दोनों साथ होंगे, एक कश्ती चलाने वाले चप्पू की तरह है, एक ईमान है दूसरा अमल है, अमल के बगैर भी कश्ती उसी बवर में फंसी रहती है और ईमान के बगैर भी कश्ती आगे नहीं चलती। लिहाजा ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं इंसानी ज़िंदगी में। अब मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ने लगा हूँ जहाँ से कल छोड़ा था। ये बच्चों आई थिंक लास्ट पेज है और आप ढूंढ लेंगे क्योंकि आपने कल छोड़ा था। इन द क्राउड देयर वाज आल्सो लाउड माउथ्ड ओल्ड हैग बीन शैतान। हैग बीन बच्चों को लिखना भूल गया, हैग बीन होता है शैतान, जो होता है डेविल, डेविल मीन नॉटी, मीन रास्कल, कोई शैतान है। इस तरह एक मुंह फट शैतान खातून है, उसी तो है अदर व्यूज। हजूम के अंदर एक शेखी में बात बूढ़ी शैतान खातून है जिसके ख्यालात कुछ और दिखाई देते हैं। इन द लाउड विस्पर, वो ऊंची आवाज में, सरगोशी में, she pointed out that several suit in a dowry, उसने जहेज के कुछ सूटों की निशानदेही की, had once belonged to the women, जो उस खतून की मलकियत थे, वह died young, जो जवानी में ही वफात पा गई। ओके बच्चों, ये लाइन में फिर बता देता हूँ। उस बूढ़ी औरत ने कुछ जहेज में शामिल सूटों की निशानदेही की जो एक औरत की मलकियत थे जो नौजवानी में ही वफात पा गई थी। इवन द ब्रेसलेट, यहाँ तक के जेबन के जो थी मेरे बच्चों जहेज के अंदर एक ऐसा ब्रेसलेट था, कंगन, ये जो हाथ में पहना जाता कुछ थे, एंड गोल्ड नोज रिंग, और सोने की नथनियाँ आर हर, वो भी उसी औरत की मलकियत थी। She added with convict, उसने बड़े यकीन से बताया, but the gold pendant, और जो झुमके हैं
पेंडेंट भी झुमके, सोने के झुमके हैं, वो भी उसी के ही हैं। She raised her eyes, फिर उसने क्या किया, अपनी आंखें नजरें आसमान की तरफ उठाई और देखा और कहा, क्या कहा मेरे बच्चों, सुनो जरा। She raised her eyes and looked toward the heaven as if they were gift from there, लेकिन उसने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई और देखा और कहा, ये सब आसमानों से आने वाला तोहफा है। अब मेरे बच्चों, ये सारा तर्जुमा मैं एक ही लाइन में, एक सांस में बता दूंगा। हजूम में एक शेखीबाज बूढ़ी औरत थी जिसके ख्यालात कुछ और दिखाई देते थे। एक तवील सरगोशी के बाद उसे बताया कि जहेज में शामिल जो सूट है एक उस औरत की मलकियत है जो नौजवानी में वफात पा गई। दूसरे सूट जेबर के जहेज में जो शामिल है, यहाँ तक कि गले का हार, सोने की नथली, और उसने यकीन से कहा सोने के झुमके, ये भी उसी औरत के हैं। उसने नजरें उठाई आसमान की तरफ और कहा, शायद ये आसमानों से आने वाले तोहफा थे। उससे अगला पैरा बच्चों, आफ्टर द सेरेमनी वर ओवर, जब तकरीबात खत्म हो गई, मैरन वाज मेड टू सिट इन अ प्लैंक्वन। ये बच्चों ऑलरेडी बताया, प्लैंक्वन उस डोली को कहते हैं जिसमें खतों को उठाया जाता था, कैरिज सीट, सीक्रेट चेयर और ऐसी चीज जिसमें दुल्हन बैठती थी। इस तरह एक प्लैंक्वन में उस जो दुल्हन है उसको बैठाया गया, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, जो खूबसूरत तरीके से सजी हुई थी। उसके बाद इट वाज कवर्ड विद द लार्ज सिल्कन क्लॉथ सो दैट ब्राइड कुड गो टू द ब्राइडग्रूम होम इन स्टिक पर्दा। वो रेशमी कपड़े से इस तरह ढकी हुई थी ताकि दुल्हन सख्त पर्दा में दुल्हा के घर जा सके। एज टू स्टडी विलेजर, दो ताकतवर जवान, स्ट्रॉन्ग, स्टडी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हेल्दी मस्कुलर, दो जवान जो थे देहाती, उठाकर उसको जो थी पालकी बच्चों उसको उठाकर मौलवी वाकड उसको चले, और मौलवी साहब चंद कदम, फ्यू स्टेप्स विद इट, चंद कदम उनके साथ चले। He must have cried silently for his eyes and nose were red. He looked pale. इस तरह मौलवी अब्बू जो थे चंद कदम चले, वो चुपके से रोए होंगे क्योंकि उनकी आंखें और नाक सुर्ख और रंग जर्द था। At the same time, he looked at peace. इसके साथ वो पुरस्कूनीज़ नजर आते थे। ये पूरे पहरे का तर्जुमा कर दूंगा। तकरीब खत्म होने के बाद महरम को पालकी में बिठाया गया। ये खूबसूरती से सजी हुई थी और एक रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी ताकि दुल्हन सख्त पर्दे में दुल्हा के घर जा सके। उसे दो ताकतवर देहाती जवानों ने उठाकर ले गए ताकि और मौलवी साहब भी चंद कदम चले। वो इतना रोए क्योंकि उनकी आंखें नाक सुर्ख थी, रंग जर्द था, उसके साथ वो पुरस्कून नजर आ रहे थे। ये बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई है। उसके बाद अगला पैरा, एज ही वेंट बैक टू हाउस, जैसे मौलवी साहब वापस आए, ज़ेबुन साहब जो थी सडनली अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे से आई। शी हेल्ड हिज हैंड, उसने उसका हाथ पकड़ा एंड ब्रस्ट आउट टीयर, और सिसकियां लेने लगी, रोने लगी। लुक एट द हाउस, घर को देखो। शी सेड सॉबिंग, उसने सिसकियां भरते हुए कहा, विदाउट महरम डजंट इट लुक लाइक अ ग्रेवयार्ड, ये तो एक कब्रिस्तान नहीं लगता। इसका मैं दोबारा दो लाइनों का करूंगा। जब वो वापस घर आए, ज़ेबुन साहब अचानक दरवाजे के पीछे से निकल कर आई। उसने अपने खामन का हाथ पकड़ा और ज़ारो कतार रोने लगी। इस घर को देखो, उसने सिसकियां लेते हुए कहा, क्या महरम के बगैर ये घर कब्रिस्तान नहीं है, उससे नहीं रहने। मौलवी अब्बू स्माइल्ड एंड कंसोल्ड हर, मौलवी साहब मुस्कुराए और उसे तसल्ली देने लगे। कंसोल्ड भी तसल्ली देना। डोंट बी सिली ज़ेबन, ज़ेबन अहमक मत बनो, अहमक
मत बनो। As a Mehran and Zabda also with her, हमारे साथ या आपके साथ ज़ब्दा और मेहरन तो हैं। What about शमसन? शमसन का क्या ख्याल है तुम्हारा उसके बारे में? Suddenly he remembers something. आर मदर एकदम उसको कुछ याद आ गया कि ज़ब्दा कहाँ है? Where is ज़ब्दा? He asked in whisper. उसने सरगोशी में कहा। Inside crying she replied. उसने अंदर से रोते हुए चिल्लाते हुए जवाब दिया। ज़ब्दा मौलवी अबुल called her. मौलवी अबुल ने उसे आवाज दी। Few minutes later ज़ब्दा came out of the room. कमरे में आ गई। चंद मिनट बाद वो थी कमरे से निकली। उसके बाद बच्चों बताया गया है there were a large dark patches tear on her new pink and head cloth। और जब वो चंद मिनट बाद आई वो बड़ी सुंदर दिखाई दी। उसके गुलाबी दुपट्टे पर आंसू के बड़े बड़े गहरे निशानात थे। The मौलवी said to his wife, मौलवी साहब ने अपनी बीवी से कहा, क्या कहा? Have you noticed? क्या तुमने देखा नहीं? आरिफ्स मदर, आरिफ की माँ, क्या तुमने देखा नहीं है? Have you noticed? He whispered, उसने सरगोशी से कहा था ज़ब्दा is art has suddenly matured। अब हमारी ज़ब्दा अचानक बड़ी हो गई है। There was a silence for a while, एक लम्हे के लिए खामोशी हो गई। The मौलवी अबुल said, मौलवी अबुल ने कहा, perhaps the reassured himself more than his wife। क्योंकि मौलवी साहब शायद अपनी बीवी से ज़्यादा अपने आप को तसल्ली देने लगे। Don't worry, मत परेशान हो। God Almighty is kind and benevolent। हमारा अल्लाह ताला रब रहमान और रहीम है। Okay, it's a sin to lose faith। यकीन खो देना गुनाह है। Oblivious of his surrounding। अब no doubt मौलवी साहब इर्द गिर्द की चीजों से बेखबर थे। मौलवी अबुल माइंड was racing elsewhere। मौलवी साहब का ज़हन दूसरी बातों की तरफ था। As in a trance, एक सकते के आलम में called शमशन, उन्होंने शमशन को आवाज दी। Slowly a third daughter beauty came forward, आगे आई, walking toward them, और उनकी तरफ चलने लगी या उनकी तरफ बढ़ने लगी। ये बच्चों आखिरी चार लाइन में सुनो क्या है। A few months after, कुछ महीने बाद महरन की शादी के बाद प्राइमरी स्कूल गर्ल्स ओपन इन विलेज, गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुल गया। उसके बाद आखिरी पैरे में मेरे बच्चों ऑल दीज ईयर, इन तमाम सालों में मौलवी अबुल हैड टू मेन ऑफ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। मौलवी साहब की सिर्फ दो ही जराए से उन्हें आमदनी मिलती थी। ओके, इन विच ही हैड द इम्प्लिसिट फेथ, जिस पर उसका पक्का ईमान था। इम्प्लिसिट पक्का ईमान। द फर्स्ट वन वाज ऑलमाइटी अल्लाह, पहली रब की जात। आफ्टर हिम, अल्लाह के बाद चौधरी फतेहदार थे। इट वाज सर्टेनली अल्लाह, ये वही रब है। बेनेवलेंस सिनर, जो अपने गुनहगारों को भी लाइक मौलवी साहब जैसे गुनहगार को भी जिसने जिंदा रखा हुआ है। और ज़ेबुन्निसा वर स्टिल अलाइव, और ज़ेबुन्निसा भी जिंदा है। That's all their children were living, और उनके सारे बच्चे भी जी रहे थे। ये उस रब की मर्जी है। मैरन हैड बीन मैरिड, मैरन की शादी हो गई सच्चा स्प्लेंडर, बड़ी शान शौकत से। ये बच्चों आखिरी पैरा मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। इन तमाम सालों में मौलवी साहब के दो ज़राए आमदनी मिलती थी जिनमें उन्हें पुख्ता यकीन था। पहला ज़रिया अल्लाह ताला की ज़ात थी, उसके बाद चौधरी फतेहदार थे। ये यकीनन अल्लाह ताला की रहमत थी कि मौलवी साहब और ज़ेबुन्निसा जैसे गुनहगार भी जिंदा थे, और ये कि उनके तमाम बच्चे जी रहे थे। इस कदर शान शौकत से महरन की शादी भी हो गई थी। हे बच्चों, अब नाउ आई थिंक टाइम इज ओवर एंड नाउ अगेन आई विल गिव यू टच अबाउट दिस चैप्टर। Tomorrow again I will give you touch about this chapter. Okay, have a nice time. Wonderful time because rain is going, so I have to move out. Okay, bye bye. Goodbye.